So folks, as you can see in the videos later, the tryst with the farmers continue. They're still an angry lot, right? Karnal stir to mirror Delhi agitation, says Tiket, but government comes out hoping that, that this somehow they can bridge the gap between the small and big farmer. Government announces increase in MSP for range of rabi crops. Government announces early MSP for rabi crops in bid to calm farm protests. But here's the problem. Support prices of 6 crops with the highest percentage hike 8.6% to mustard and rapeseed and lowest to wheat at 2%. The early announcement is also seen as an attempt to send a positive signal to farm unions in Punjab, Haryana and Western UP, agitating other farmers' laws interpreted by them as intended to eventually end the MSP regime. What you have to note, folks, it's not announcing the MSP, is whether MSP is being given to the farmer, and that's where the problem is in UP. It's not. It says BKS welcomes MSP hike but wants law to boost profitability. Bharat Kisan Union members Bhupendra Chaudhary and the lowest hike said that the lowest hike in MSP for wheat will hit farmers of Punjab and Haryana. Absolutely. This is a political economy. The money is now moving to Madhya Pradesh and all the other states for agriculture ruled by the BJP. It's hurting Punjab, Haryana. Eventually, it's about changing the cropping pattern. There's nothing wrong with that. But the way it's being done, it's insidious. Centre and farmers must find middle ground, SC panel says, SC panel member, and I'm sure they do. And Gillis Valander Vernier is right. High volume, low yield for all its might. The Kisan agitation is confined by group politics, which suits UP pole-bound BJP. In Western UP, the old agrarian elite has been displaced by a new class of politicians grounded in business and belonging to a greater array of castes and community. Here is where I have a problem with these guys from Ashoka University and the English press. What I'm hearing from on the ground, from these guys, the Hindi press that's on the ground and telling the truth, is going to leave these guys days. It's not what he's suggesting is absolutely not what there's on the ground. Cheers. Hear what's coming up next, folks. Cheers. नहीं, आशुतोष जी 100% फर्क पड़ा है। चिंता की लकीरें हैं। आज सरकार ने बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज के केवल किसानों से संबंधित विज्ञापन दिए हैं। उसके पीछे सारी डिटेल दी है कि हमने गन्ने का भुगतान इतना कर दिया, किसानों को ये कर दिया, वो कर दिया। तो इसका मतलब साफ है कि जब जिस तरह से कल भीड़ उमड़ी थी, जिस तरह से भीड़ दिखाई दी थी, सरकार को उम्मीद नहीं थी कि मुजफ्फरनगर में इतनी भीड़ उमड़ेगी और इतनी शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन निपट जाएगा। दूसरी बात जो पूर्वांचल की आप कर रहे हैं कि पूर्वांचल में ये आंदोलन कम दिख रहा है, आंदोलन में भागीदारी नहीं दिख रही। मैं पिछले दिनों में करीब 20-25 गाँवों में घूम चुका हूँ। आंदोलन में भागीदारी ना दिख रही हो, लेकिन सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं। जब किसानों से मैंने पूछा कि किसान आंदोलन में आप तो जान ही रहे हो, तो आप क्यों बात कर रहे हो, तो उनका जवाब ये था हम जान भर ही रहे हो, लेकिन वहाँ के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी जाति हो रही है। तो ये एक बरादरी वाली फीलिंग होती है, जैसे कहीं पत्रकार पे किसी पे हमला हो जाए, हम ना जाए, लेकिन लगता है कि पत्रकार पे हमला हो गया, बुरा हो गया। तो सेम फीलिंग मैं देख रहा हूँ पूर्वांचल के जिलों में भी किसानों को लेकर पैदा हो रही है कि किसान गलत कर रही है, और ये भी फीलिंग आ रही है कल को उनकी जमीन गई तो हमारी जमीन दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चिंता हो रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट एकजुटता थी वो सबको समझ में आ रही है कि उसमें डेंट पड़ गया। दूसरी बात जो खतरनाक उनको लग रही है वो ये लग रही है कि अगर एक मंच से नारे लग रहे हैं अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, तो ये भी चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जाति और धर्म ये 2 कार्ड चलाने की कोशिशें हर चुनाव में रहती हैं। तो इस बार समझ में आ रहा है कि जाति का कार्ड धर्म के कार्ड पे ज्यादा भारी पड़ रहा है। तो जाति का कार्ड भारी पड़ रहा है और जाति टूट रही है, और जाति अगर भाजपा के खिलाफ जा रही है, संदेश आ रहा है, तो ये चिंता की लकीरें हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आखिरी बिखराव चल रहा है उसमें एक ये बिखराव और अगर जब शामिल हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में चिंता की लकीरें हैं, चिंतन है, मनन है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री ने शाम को किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात करने की बात करी, मैसेज गया कि हम किसानों की आय बढ़ाने में बात कर रहे हैं, विज्ञापन दिए गए। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुजफ्फरनगर रैली का बहुत बड़ा असर पड़ा है। कौन कर लेगा? योगी जी। क्यों? इसके बाप की प्रॉपर्टी है, इसके बाप की है, क्या जब कर लगा? समय के साथ तो सरकार बदल गई, जो वादे करे थे उन्होंने अब तो कुछ भी नहीं करे, तो हम क्यों ना बदले समय के साथ। हमारा जब से इधर देना शुरू करा है, जब से महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचा, छठी का दूध याद दिला देंगे ना। योगी ना करा क्या 1 रुपया दिया किसानों को, उससे बढ़िया तो मायावती रहेगी। गाँव में एक बार जाके देखे बीजेपी कोई भी आगे जाके थे लाठी पहना रही लंबी बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता गाँव में घुस के दिखा दे। तैयारी कर रहे थे आर्मी के लिए 2 साल से भर्ती नहीं करवाई। बालक स्कूल नहीं गए, बालक अनपढ़ हो गए, बेकार हो गए, भूल गए स्कूल। आशीर्वाद होगी आप बीजेपी वालों को, गांव में जाएंगे बीजेपी वाले का जूते मारेंगे। कोई आशीर्वाद न दिया, वो हमारे बच्चों ने जो गलती करी है उसकी खामियाजा हम यहीं तो भुगत रहे। अगर हमारे बच्चे गलती ना करते तो ये योगी कहाँ से
अब रोक लियो, गए थे अभी टिकैत जी भी गए थे, किसान भी गए थे, अब भी जाएंगे। इसे आशीर्वाद देते, इसे दिल्ली में मारेंगे या लखनऊ में मारेंगे। भाजपा आशीर्वाद लेगी या वैक्सीन लेगी? लोग जूते काटे धरे, पुरानी जुत्ती धरी घिसी हुई, वे बजेंगी इन पे। आशीर्वाद कैसे देंगे? आशीर्वाद तो जीव देंगे जी, हमारा मांग पूरी करेंगे। So folks, let me just say this. You know, the Brahmins in UP, while only 17%, have a disproportionate influence on the people of the on the vote bank. The reason is, if you can imagine, a Pandit reaches a village and everybody lines up to meet him. Right? For some reason, historic reason, they've always carried this ethos, right? And this is the group that really is now being chased because they're totally upset with the Yogi Sarkar, because they've been brutalized really. We've been seeing some of the notes that are coming out and incidents really brutalized by the Thakurs, right? What do we have here? RSS affiliated BKS backs farmer demand for MSP. That's one. That's continuing on what I just said. And trying to get the Jats back, which is not happening. In Aligarh, PM to lay foundation of 92-acre university named after Jat king on September 14th. Hey, Modi's lost the plot, right? Then here, with Ram's slogans, BSP wraps up first phase of Brahmin meets. And here this 4 PM news after this. This guy has got a huge following in YouTube, right? You hear him. Nobody actually believes her anymore, right? Before polls, BSP woos Brahmin, says it will expedite temple work. So will everybody else. So will the BJP. Mayawati shuffles caste cards, plans mega Brahmin outreach, Sarvajan BCP to add a hue of saffron. It's not going to happen. Nobody believes that for 4.5 years when they've been brutalized, she's not said a word, and now suddenly she's out creating this thing, incubation for Brahmins, and everybody knows she's the B team. At least that's the B team for the BJP folks. More later. जिस स्टाइल से कहा ना कि ब्राह्मण जो है बीजेपी में बड़ा दुखी है और अब ब्राह्मण जो है वो बसपा में आ जाए, और जो आपने मुस्कुराते हुए आज कहा ना कि दलितों पे आपको नाज है, सच में कसम से यकीन मानिए, आप ऐसी वाली मुस्कुराहट बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे देखी है। पता है, जब आप मुख्यमंत्री थी ना तो सब पत्रकार डरते थे, आपको इतना गुस्सा आता था ना, तो हम लोग सोचते थे कि आप मुस्कुराती कब होंगी, आप हंसती कब होंगी। तो आज अच्छा लगा आपका जो चेहरा था, मतलब पंडित जी की बात सुन के आप थोड़ी गदगद थी और फिर दलितों पे नाज है कह के आप हंसती मुस्कुराती, तो ये अच्छा लगता है। राजनीति में नेताओं को ऐसे ही हंसते बोलते रहना चाहिए। लेकिन बहन जी, क्या पंडित मूर्ख है? चुनाव की घोषणा में 4 महीने बचे हैं बहन जी, आप कह रही हैं कि पंडित बीजेपी में दुखी है, तो और पंडित तो दुखी 4 साल से है, तो आपने 4 साल से कहाँ याद करी? रायबरेली में 5 पंडित जला के मार दिए, खुशी दुबे जेल में है। पंडितों के अगर मैं अत्याचार गिना के बैठ जाऊंगा तो आधे घंटे अत्याचार यहाँ पे गिना सकता हूँ मैं। लेकिन बहन जी, आपको तो उस समय पंडित जी याद ही नहीं आए। अब याद तब आए जब 4.5 महीने बचे चुनाव में। तो पंडित बहन जी इतना मूर्ख तो है नहीं कि आप अयोध्या में 23 तारीख से ब्राह्मण भाईचारा सम्मेलन करने जा रही हैं। आपने घोषणा कर दी कि सतीश मिश्रा जी अब ब्राह्मणों को दलितों के साथ जोड़ के। So in conclusion, folks, one of the key groups that in this Jatiwad fight that's going to happen in UP is going to essentially be the Brahmin. He carries more than a heavier. He is just disproportionately influential, right? However, what the BJP has been doing, especially the Yogi Sarkar, is something that if you hear Mr. Sanjay Sharma, his 4 PM news, I've got a couple of episodes, parts of it coming on after this, will tell you all the different things that have happened in the last 4.5 years to make these guys extremely upset with these the BJP Sarkar. BJP is up in arms about this. They're worried, and that's one of the reasons I'm told that they're still not declaring Yogi as their chief ministerial face, because if they do, the Brahmins apparently is just definitely not going with it, right? And one of the key incidents that happened that upset the Brahmins further was this: BJP inducts ex-BSP MLA accused of arson at its MP's house. It says former BSP MLA Jitendra Singh Bablu, and accused in the case involving arson and setting the house of then Uttar Pradesh Congress Committee Chief Rita Bahuguna Joshi, now a BJP MP on fire in 2009, joined BJP on Wednesday. Of course, he's been thrown out because there was such a lot hue and cry. But the damage has been done. The damage has been done. This group is there for the picking. They are not going with the Samajwadi Party, that's for sure. They are
they are soft towards the Congress, and the Congress must make a pitch for them and kind of bring this together with the Samajwadi Party. Cheers, folks. Jai Hind. पूरे देश में तहलका मच गया था। इस बीच में एक बड़ी घटना घटती है कि मुरादाबाद की शायद एक कोई मामला था, तो रीता बहुगुणा जोशी जी ने मायावती को जोड़कर कुछ कमेंट कर दिया था उस घटना को लेकर कि दलित जाति की लड़कियों स्वाभिमान, इस तरह का कुछ थोड़ा भद्दा कमेंट था। तो जितेंद्र सिंह उस समय बाहुबली विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, मायावती के राइट हैंड थे, तूती बचती थी। तो भैया जितेंद्र जी को कहाँ बर्दाश्त की बहन जी के लिए कोई कुछ कह दे। तो बहन जी की भक्ति में इतने मशगूल थे जितेंद्र सिंह जी कि गए साथियों के साथ पेट्रोल वेट्रोल लिया और रीता बहुगुणा जोशी के घर में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और रीता बहुगुणा का मकान उस समय का जो मुख्यमंत्री कार्यालय था, जिसको एनेक्सी, जिसको शास्त्री भवन, अब वो रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी में आ गई, सांसद बन गई। जिस व्यक्ति ने उनका घर जलाया था, मुझे अभी तक वो देर रात का सीन याद है। मैंने रीता बहुगुणा जोशी की आंखों में उस रात को मैंने आंसू देखे थे, मैंने डर देखा था। मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह रहा हूँ। जब आग लगी थी तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे, हमने वो सीन देखा था। खौफनाक सीन था कि मायावती जी के मुख्यमंत्री रहते, उनके संरक्षण में किसी का घर फूंक दिया जाए। हिम्मत थी, लेकिन सरकार ऐसी थी, कौन बोलता उस समय, तो सब खामोश थे। और फिर वो जितेंद्र सिंह बबलू एक बड़ा नाम हो गए थे अपराध की दुनिया में। वो जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में शामिल कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। जैसे ही जितेंद्र सिंह बबलू के आने की खबर मिली तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया और रीता बहुगुणा जोशी जी अपनी पीड़ा रोक नहीं पाई और गुस्से से उन्होंने कहा कि गलत तथ्य छुपा के पार्टी में आए और मैं जेपी नड्डा जी से, स्वतंत्र देव जी से शिकायत करूंगी, इनको बाहर निकाला जाए। उन्होंने कहा, देखा आपने, एक ब्राह्मण सांसद का घर फूंकने वाला क्षत्रिय बाहुबली पार्टी में शामिल हो गया। कितनी गंभीर बात है और इसके गंभीर राजनीतिक अर्थ समझिए। मैं फिर लाइन रिपीट कर रहा हूं। उन लोगों ने कहा कि एक ब्राह्मण सांसद का घर फूंकने वाला बाहुबली क्षत्रिय अपराधी भारतीय जनता पार्टी में और शामिल हो गया। लेकिन आज स्वतंत्र देव सिंह जी ने जब बबलू का स्वागत किया, जितेंद्र सिंह बबलू का स्वागत किया, तो उनकी कमर 90 अंश के कोण पर झुकी हुई थी, हाथ जोड़ के। ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष एक अपराधी के सामने हाथ जोड़ के अगर 90 अंश तक झुक रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। ये जो आपराधिक इतिहास से भरी हुई है, आपने पूरे देश में चर्चा करा ली कि अपराधियों को गले लगाने से आपको परहेज नहीं है। रीता बहुगुणा जोशी ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा घर जलाने वाला पार्टी में कैसे आ सकता है। आज तक चैनल पे भी सवाल किया गया स्वतंत्र देव से उनकी पंचायत में कि ऐसा अपराधी पार्टी में कैसे आ सकता है। स्वतंत्र देव ने कहा कि हम रीता जी को बुला के बात कर लेंगे। तब मैसेज गया कि क्या बात कर लेंगे, अपराधी तो आ गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे शॉकिंग बात यह रही कि इस एक हफ्ते में जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग से जितेंद्र सिंह बबलू के निकाले जाने से तक जो सबसे खराब प्रचार किया गया वो प्रचार ये था कि एक ब्राह्मण सांसद का घर जलाने वाला क्षत्रिय अपराधी पार्टी में शामिल किया गया। मैं फिर कह रहा हूं, सबसे खराब संदेश ये गया कि एक ब्राह्मण सांसद का घर जलाने वाला अपराधी क्षत्रिय अपराधी पार्टी में प्रचारित कर रहे हैं कि योगी जी के आने से प्रदेश में ठाकरों का वर्चस्व बढ़ा। ये साजिश कर रहे हैं योगी जी के खिलाफ। वो जानते हैं कि ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में पूर्वांचल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहती है, आपस में कंपटीशन रहता है, बहुत अच्छे संबंध नहीं है। और क्षत्रिय और ब्राह्मणों का ये जो संबंध का बिखराव है ये जमीनी हकीकत में बहुत खतरनाक है। ब्राह्मण 13-14% ब्राह्मण है, लेकिन वो ताकत में कई गुना हो जाते हैं क्योंकि ब्राह्मण वाचाल है। गांव में पंडित जी खड़े होकर अपराधी को शामिल किया गया जिसने ब्राह्मण सांसद का घर जलाया था, बहुत भारी पड़ सकता है, तो निकाल दिया गया बबलू को। लेकिन इस 7 दिनों में तो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये ब्राह्मण ठाकुर का संदेश फिर नीचे चला गया। अब आप भले ही इस बात को ये कहें कि हमने ब्राह्मणों के सम्मान के लिए निकाल दिया, लेकिन जो संदेश जाना था वो चला गया। मुझे नहीं पता कि योगी जी की इसमें सहमति थी ना थी, लेकिन ये संदेश भी चला गया
कि योगी जी कहते हैं हम माफियाओं की कमर तोड़ रहे हैं, हमने माफियाओं के घर जमा दिए। लोग कह रहे हैं माफियाओं को तो आप बुला बुला के दावत दे के पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो आपने बबलू को निकाल के 100 जूते भी खा लिए, 100 प्याज भी खा लिए।